So a very good evening to all and a very warm welcome to today's session. सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में. Good evening Praveen sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर इस सेशन में. A very good evening to you, sir, and welcome everybody. For all those who have joined in and all those who are planning to join in, I would request all of you to please make sure that you be here a little faster. इस सेशन को बहुत देर तक नहीं रखेंगे, हमें मालूम है आपकी बहुत सारी चीजें आप करने वाली हैं, रिलैक्सेशन का भी टाइम है, so we would not be taking much of the time because we also need to take the GMAT session as well. So दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे, correct विनीत सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल. And those who are yet to join, please join ASAP because we believe and we actually hope that all of you who are appearing for the IPM-IIM Indore examination as well as JIP-MAT examination, JIP के लिए तो JIP-MAT के लिए we are going to have the session at 9 PM, right? Shortly after this particular session. But जितने भी लोग IIM Indore के examination दे रहे हैं, I expect you to be here on this platform, YouTube platform, so that you can get the immense benefit out of this particular session. So Sandeep, hello. Sandeep Kumar, Jay Singh, good evening. Arjun, Sanyam, good evening everyone. Right? So today we are going to have a very, very important session, strategy session on IPM Indore, right? और इसके लिए मैं अपने guest प्रवीण सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, thanks बोलता हूँ, thanks for making time to join this session. And myself and Praveen sir will be discussing with you all that how to conduct yourself or how to go about this particular examination for IIM Indore. I shall be taking care of the QA part. मैं आपको बताऊंगा जो सबसे challenging part होती है IPM Indore के लिए, that is the QA part, both QA MCQ and QA short answer. So I shall be throwing some light on that what should be the strategy to tame that particular section, what should be the strategy to handle those questions, and post that I'll be requesting Praveen sir to take care of the verbal ability part, जहाँ पे कि ये बहुत ही फेमस है कि बच्चे कहते तो हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बट रियलिटी में जब मार्क्स आते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, राइट प्रवीण सर? Absolute sir, and it actually is the opposite. Maths के साथ भी ऐसा ही होता है. They are generally afraid of things, but the way चीजें चलती हैं आगे, तो they get some marks in the maths, but जब बात आती है इंग्लिश की, they generally believe हो जाएगा, वो क्या होता है, that is always a question mark. Great. And sir, that's the contradiction. उसमें होता है क्या ना कि मैथमेटिक्स में there is a fear, बच्चे अटेम्प्ट ही कम करते हैं, बट इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होता है ये इंग्लिश तो शुरू से पढ़ा है, ये हो जाएगा, राइट? सो दैट इज द थिंग. बट एनीवेज दोनों में ही there is some surprise element which we are going to discuss today as well. So I hope everybody has joined in. So let's start. So let me start by giving you some overview key highlights of IPM Indore. So, and Praveen sir, please feel free to add something as and when you want, as and when you need that there is a requirement. So, absolutely sir. मैं थोड़ा सा की हाइलाइट्स शेयर करता हूँ बच्चों के साथ ताकि ये थोड़ा सा हैंडी फील करें. प्रवीण सर, is this visible presentation which I am sharing with you? Yes sir, it is. Great. So as we said that we are not going to keep this session very long and very elaborate. We are going to talk point to point, right? So let me quickly come to the key highlights of IIM Indore. तो एक चीज सबसे बड़ी बात ये है कि IIM Indore ऐसे एस्टैब्लिश हुआ था 1996 में और उसमें MBA के प्रोग्राम्स रन किए जाते थे 1996 से ऑनवर्ड्स. बट IIM Indore ने ये डिसाइड किया कि भाई जब सब कुछ करने के बाद बच्चों को MBA ही करना है, इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करना है, BA करने के बाद BCA करने के बाद BBA करने के बाद BSc करने के बाद BCom करने के बाद जब सब कुछ करने के बाद MBA ही करना है तो क्लास 12 के बाद ही बच्चा डिसाइड कर ले, क्यों 3 साल ग्रेजुएशन करना फिर घूम फिर करके उधर ही पहुंचना, राइट? सो IPM Indore started this program in the year 2011, right, which is called IPMAT program, right? Integrated Program in Management Aptitude Test, right? So this is, IPMAT, it's a 5-year integrated program in management, जिसमें आपको 3 years of BA degree मिलती है, Bachelor of Arts, and 2 years of MBA, right? So it's overall 3 years is a graduation part, 2 years is a post-graduation part, और आप सीधे 5 साल के बाद MBA की डिग्री लेकर के निकलते हैं IIM Indore से. As I said that this was started in the year 2011. ऑलरेडी MBA का जो प्रोग्राम है वो 1996 से चलता आ रहा है IIM Indore में, बट ये 5-year integrated program लॉन्च हुआ 2011 में. 2021 में this examination was held on 16th of July, and let me tell you that this is one of the examinations in India that is, I would say this is very amongst the very few exams in India which happens after class 12 जहाँ पे कि sectional time limit भी होता है और sectional cutoff भी होता है, right? And that actually makes this examination tough
कि जहां पे एक पर्टिकुलर एक निर्धारित एक डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर टाइम लिमिट डिफाइंड ना हो तो बच्चे को ये फ्रीडम मिलता है कि भाई मेरा इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इंग्लिश में ज्यादा टाइम दूंगा, मैथ्स में कम दूंगा, या मैथ्स में ज्यादा टाइम दूंगा, इंग्लिश में कम दूंगा। बट यहाँ पे यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, राइट? सो देयर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट एज वेल एज देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ, राइट? ठीक है, नाउ इट इज toughest of all the IPM examinations so far. IIM रोहतक का पेपर, अगर आपने, बहुत सारे लोगों ने IIM रोहतक जो IIM इंदौर देते हैं वो IIM रोहतक का भी एग्जाम जरूर देते हैं। आप IIM रोहतक के पेपर से इसको कभी भी कंपेयर करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड द पेपर टू बी टफ। इनफैक्ट दूसरा जो IPM का एग्जाम होता है जिसको हम GIP मैट कहते हैं, वो भी दैट इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन। सो GIP मैट से या IIM रोहतक से ये एग्जामिनेशन जो IIM इंदौर का है ये एनी डे ज्यादा टफ है। अनलाइक GIP मैट, अनलाइक IIM रोहतक, इस एग्जामिनेशन में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज अलाउड, राइट? IIM रोहतक में आपने एग्जाम दिया होगा, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। GIP मैट के एग्जाम में देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड, बट इन दिस एग्जामिनेशन ऑफ IIM इंदौर कैलकुलेटर इज अलाउड, सो यू कैन कैलकुलेट स्टफ्स एंड you can write down your answers in the short answer and all. 150 seats for domestic applicants, right? Foreign nationals के लिए अलग से सीट्स होते हैं, उनका SAT के थ्रू एडमिशन होता है, बट फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के लिए 150 सीट्स अवेलेबल है, राइट? एंड यू गेट इनटू दीज 150 सीट्स थ्रू IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन होगी। इंटरव्यू फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जैसे JIP मैट के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन IIM रोहतक में इंटरव्यू होता है, उसी तरह से IIM इंदौर में भी इंटरव्यू होता है। इफ यू क्रैक द रिटन फेज अगर आपने क्रैक कर लिया तो यू आर सपोज टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू राउंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो दिस इज अ हाईलाइट। And as of now, total of 6 institutions accept IPMAT Indore score for admission to their respective programs, right? Let me show you the list of 6 institutions who actually accept the IPMAT Indore scorecard. सबसे पहले तो IIM इंदौर ही है, सेकेंड IIM रांची, राइट? आफ्टर दैट निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो भी इस स्कोर कार्ड, आपको फॉर्म अलग से रांची का IIM रांची का फिल करना पड़ेगा, आपको निर्मा यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा, बट एडमिशन होगा बेसिकली दे विल एक्सेप्ट द IIM इंदौर IPMAT स्कोर ओनली, राइट? डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विच इज इन हैदराबाद, ये भी इसका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप एडमिशन IPMAT इंदौर के थ्रू ले सकते हैं। IIFT काकीनाडा ने इसी बार 2022 में IPM प्रोग्राम शुरू किया है आंध्र प्रदेश में। So this campus is in Andhra Pradesh. It has started this IPM program, and IIFT ये कहता है कि भाई हम भी एडमिशन जो लेंगे वो बेसिकली IPM इंदौर के स्कोर कार्ड पे लेंगे, राइट? एंड TAPI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट व्हिच इज इन बैंगलोर, टैपमी जो है वो इनफैक्ट मणिपाल में, so it is actually going to take admission through the IPM score card, right? So these are the 6 institutions including IIM Indore. Now this is 2022 highlights. 2022 में, as you know very well, it is actually mentioned that QA MCQ there will be 2 sections of maths, QA multiple choice questions and QA short answer. Short answer basically जिसमें आपको आंसर्स टाइप करने होते हैं। MCQs में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैथमेटिक्स के 2 सेक्शन होते हैं, QA MCQ, QA शॉर्ट आंसर। इंग्लिश का एक ही सेक्शन होता है, वर्बल एबिलिटी, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर MCQ फॉर्म, राइट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं। For 40, this 40 minutes for QA MCQ, 40 minutes for short answer, and 40 minutes for verbal ability. So यहाँ पे sectional time limit predefined. In fact, notification में number of questions नहीं दिया गया, but generally we know this that for the past so many years, हमारे experience हमें अच्छे से पता है कि each section has 40 questions, like QA MCQ 40 questions, QA short answer 20 questions, and verbal ability has 40 questions. वो मैं आपको दिखाऊंगा। Guys, please understand one thing. There is every question carries 4 marks. Every correct answer is 4 marks. Every incorrect answer is -1, -1. Negative marks है। तो नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाते भी हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव तुक्का होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड दैट इज शॉर्ट आंसर. इट हैज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर्स टाइप करना होता है. यू नीड टू टाइप योर आंसर्स, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? विभोर आज पूछ रहे हैं कि सर इस बार सीट्स बढ़ेगी. नो, उन लोगों ने प्रीडिफाइंड है 150 सीट से अभी, ठीक है. So QA short answer में there is no negative marking, QA MCQ में there is a negative marking, QA and verbal ability MCQ there is a negative marking. एक चीज और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये डिफाइन किया है
कि भाई जिस ऑर्डर में लिखा गया है क्यूए एमसीक्यू, उसके बाद क्यूए शॉर्ट आंसर, उसके बाद क्यूए उसके बाद एमसीक्यू वर्बल एबिलिटी, the above table does not indicate the final order of sections. It is possibility that QA short answer पहले हो, MCQ बाद में हो और verbal ability last में हो, या it could be in any order. लेकिन जिस order में भी होगा उस order पे आपको stick करना होगा. You don't have the choice to go to to choose the section as per your wish and desire. No, you cannot do that. जिस order में question दिया गया होगा examination में, you are bound to answer questions in that order only. ठीक है? So this was a brief about this. Now, let me quickly show you that aptitude test जो आप देंगे on 2nd of July 2022. इस दिन सैटरडे है, इस दिन आप IPM इंदौर का एग्जामिनेशन देंगे, IPMAT का. 65% वेटेज आपके एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को दिया जाएगा एंड 35% वेटेज विल बी गिवन टू द पर्सनल इंटरव्यू. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा एंड यू विल बी ऑफर्ड एडमिशन टू द कैंपस ऑफ IIM इंदौर, राइट. So जो आप एग्जाम देने वाले हैं 2nd of July को, उसका 65% वेटेज होगा. Once you crack that examination, आपका इंटरव्यू होगा and first of all focus on cracking the examination. इंटरव्यू तो बाद की बात है and definitely we are going to conduct interviews for you people, all those who will crack the examination, crack the written round, right. Now please see this because ये important इसलिए है क्योंकि there is a significant change in the sense कि 2019 तक till 2011 से शुरू हुआ था, ये 2011 में शुरू हुआ था और 2019 तक the pattern of the question paper was as follows. QA MCQ में 40 questions होते थे and 40 minutes time for this particular section. तो देखिए 40 questions 40 minutes यानी 1 minute per question and every question comprising of 4 marks. So basically 160 marks का ये section हुआ करता था. QA short answer जिसमें कोई negative marking नहीं होती है. You have 20 questions and 40 minutes. So this is 1 minute per question, right? यहाँ पे 20 questions है short answer में, लेकिन आपको time कितना मिला हुआ है? 40 minutes, means 2 minutes per question, right? And again, the weightage is 4 marks per question, so 80 marks का ये section है. And the third is verbal ability, and it is purely MCQ, right? So 40 questions, 40 minutes. So 1 minute per question, right? Again, so every question 4 marks, so 160 marks. Total 400 marks का पेपर होता था. 160 marks of MCQ, 80 marks of short answer, and 160 marks of English. Total 400 marks का पेपर हुआ करता था. But you know very well what happened in 2020 and 2021. It was the COVID first wave, second wave. उसकी वजह से pattern change कर दिया गया, questions कम कर दिया गया, time भी कम कर दिया गया, right? And this was the pattern for 2020 and 2021, as you can see. MCQ के questions जो पहले 40 हुआ करते थे, वो कम करके 20 कर दिए गए. And for 20 questions, time was 30 minutes. Means 1.5 minute per question, right? Again, the weightage remains same, 4 marks per question. Short answer के जो 20 questions थे, उसको कम करके 10 कर दिया गया. But the significant thing was that the time for 10 question was 3 minutes. यानी कि it was 3 minutes per question. यानी कि यहाँ पे अब हर question के लिए time ज़्यादा मिल रहा है आपको. MCQ में भी time ज़्यादा मिल रहा है, short answer में भी time ज़्यादा मिल रहा है. क्योंकि क्वेश्चंस तो कम कर दिए गए, लेकिन क्वेश्चन जिस प्रोपोर्शन में कम किए गए, टाइम उस प्रोपोर्शन में कम नहीं किया गया. टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, राइट. सो अगेन 40 मार्क्स वेटेज फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. वर्बल एबिलिटी इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस. इंग्लिश के लिए थिंग्स रिमेन्स एज इट इज. 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स मींस 1 minute per question. Again 120 marks, right? Now if we compare the difference, if you see the difference, what's the difference? Difference ये है, और ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे आगे जाकर के, सर कट ऑफ क्या होगा, आपको क्या लगता है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, टफ होगा, आसान होगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे. लेकिन आप इस कंपैरिजन को देखिए 2019 तक और ये 2020-21 जहाँ पैटर्न चेंज हुआ है, उन दोनों का कंपैरिजन 2019 में क्यों दिखा रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि 2019 जब का जो पैटर्न था, the same pattern would be followed in 2022, right? The same pattern would be followed in 2022, and that's the reason I am showing you the comparison. Now the comparison is 2019 में QA short answer में 20 questions हुआ करते थे and 40 minutes was the time. 20 questions 40 minutes was the time, means 2 minutes per question, right? But 2020-21 में it was 10 questions and 30 minutes, means the time was 3 minutes per question. आप compare कर लीजिए.
कहाँ पे आपको 2019 में 2 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा था शॉर्ट आंसर में, अब आपको 2020-21 में पिछले 2 साल में आपको 3 मिनट्स पर क्वेश्चन मिला। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है कि जब आपको 3 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है, your number of attempts would be more and hence the cutoff will rise, right? Common sensical चीज है। आप MCQs में देखिए 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स 2019 तक, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन जो मिल रहा था 2019 में या 2019 से पहले तक, 2020-21 में ये 20 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिला आपको। 1.5 मिनट्स per question means you have 30 seconds more to solve one question. So when the time is more, obviously your attempt will be more and subsequently the cutoff will rise. So far as verbal ability is concerned, 40 questions 40 minutes means 1 minute per question. It remains as it is. 30 questions आए थे और 30 minutes का time मिला था, 1 minute per question, right? Now अब आपको ये अच्छे से पता है कि जहां पे यहाँ पे 20 + 40 + 40 टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहां पे टॉपिक्स वुड बी मोर डाइवर्स, मींस यू विल हैव मोर टॉपिक्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम। क्वेश्चंस ज्यादा टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं 100 क्वेश्चंस में। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में जब आप 10 + 20 + 30 60 क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं 2021 में और 2020 में, तो 60 क्वेश्चंस में क्या हुआ, यहाँ पे आप 100 क्वेश्चंस पूछ रहे थे, यहाँ पे आप 60 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब आप 100 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और 60 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हैं उसमें ज्यादा टॉपिक्स आप कवर कर पाएंगे, राइट? मोर टॉपिक्स यू विल बी एबल टू कवर एंड मोर क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आस्क टू द कैंडिडेट्स vis-a-vis 60 क्वेश्चंस जहां पे कि आपके पास टॉपिक्स कवर करने के लिए कम होगा। So diversity of the topics was more in 2019 and it will be same as in 2022 as well, right? Diversity was less in 2020 and 21, right? Cutoff की जहां तक बात आती है तो till 2019 cutoff was bit low, right? 2020 और 21 में cutoff was relatively high. Why? Because of the single reason that for per question the number of time was more. QA के लिए शॉर्ट आंसर के लिए 2 मिनट था जो कि बढ़ के 3 मिनट पर क्वेश्चन हो गया लास्ट 2 इयर्स में। MCQ के लिए 1 मिनट था जो 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन हो गया। So obviously the time is more, so the number of attempts will be more and cutoff will be relatively high on the higher side. Now let me quickly show you the cutoff as well. आप देखिए यहाँ पे जस्ट 2 साल का कंपैरिजन में कर रहा हूँ, 2021 का जब पैटर्न चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड 2019 का। 2019 में आउट ऑफ 160 मार्क्स इफ यू स्कोर 31 मार्क्स द सेक्शनल कट ऑफ वाज क्लियर, यानी 20% मार्क्स आपने स्कोर किया, सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो गया। वेयर एज 2021 में आप देखिएगा ये 160 से कम होके 80 मार्क्स हो गया टोटल। 80 मार्क्स में से आपको 21 मार्क्स ले आने थे टू क्रैक द सेक्शनल कट ऑफ एंड द परसेंटेज इज 26.2%। तो आप देख सकते हैं यहाँ 20% से बढ़ के कट ऑफ 26.2% हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पे यू आर गेटिंग 1 मिनट पर क्वेश्चन, यहाँ पे यू आर गेटिंग 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन एंड हेंस इट इंक्रीज द कट ऑफ, राइट? उसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे 2022 में 2019 का पैटर्न फॉलो होगा। यस, ऑल्दो टाइमलाइन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि 40 मिनट्स शॉर्ट आंसर के लिए, 40 मिनट्स MCQ के लिए, 40 मिनट्स वर्बल एबिलिटी के लिए, राइट? बट वी एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस टू बी इन द सेम ऑर्डर जो 2019 या 19 से पहले हुआ करते थे, राइट? उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 2019 में 80 मार्क्स में से आपने अगर शॉर्ट आंसर में 20 मार्क्स स्कोर कर दिया है which is 1/4 which is 25%, your sectional cutoff was clear। लेकिन आप देखिए 2021 में कितना हो गया, 40 में आपके 16 मार्क्स अगर आ रहे हैं तब आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होता है, मींस परसेंटेज इज 40%। कहां पहले ये 25% हुआ करता था, बढ़ के कितना हो गया 40%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन टाइम मिल रहा था, यहाँ पे आपको 3 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है और स्वाभाविक है आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है पर क्वेश्चन। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस एंड हेंस द कट ऑफ वाज मोर। सरप्राइजिंगली इंग्लिश में, राइट, 45% was the cutoff. Out of 160, you had to score 71 to crack the sectional cutoff of English, right, of verbal ability, right? But last year, 120 marks में से आपको 70 marks देकर के आना था, which is more than 50%. So, 2019 तक 45% was the cutoff for English, which increased to 58.3% in the last year. So that actually, इस पे प्रवीण सर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं. That actually gives me an impression that probably the verbal ability section was easier as compared to the last year. Praveen sir, I
need your inputs on this. Absolutely. Absolutely, sir. Actually, sir, there was a little variation in 2019 as well, because they said that the cutoff was actually 100, because they generally do not declare such kind of cutoffs. But 2021 को हम थोड़ा aberration मानते हैं. Let not discuss about 21 because 2019 का paper format follow होगा. So if we talk about 2019, we would definitely see that what you are getting is 45% तो होता ही होता है for sure, right? So उसके ऊपर it goes to 55 to 60% as well, but 45 is something which is a cutoff. Boys and girls, we'll have to also understand that cutoff का मतलब selection नहीं होता है. जैसे अभी विनीत सर ने आपको एक चीज बताई कि there is a 65%, then there is a 35%, and then there is another percentage. उस पूरा का एक variation होता है, right? So वो पूरा जाके फिर selection process के अंदर आता है. जैसे एक aptitude score 65, then personal interview 35. And then a composite score has been taken. तो आपको दोनों तरफ स्कोर को बढ़ाना पड़ता है, right? Let us first talk about this cutoff score. Obviously, sir, cutoff score 45% comparatively easier होता है, but इसमें फिर वही बात होती है, जो चीज easy होती है तो उसमें ज्यादा questions भी आपको attempt करने होते हैं with the maximum number of accuracy. तो अब सर easy बोले difficult बोले, वो easy चीज भी difficult बन जाती है for the same reason, right? So this is what we'll all would have to understand. Yes, sure. And sir, subsequently then we'll also be discussing about the overall cutoff. क्योंकि अगर किसी बच्चे के मन में अगर ये इंप्रेशन है कि सर ये तो बहुत आसान दिख रहा है सर, 31, 20, 71, अगर हमारा 71 plus 20 that is 91 plus 31 122 मार्क्स आ जाए और हमारे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, right? Because there is an overall cutoff as well, right, which you have to achieve. So ये bare minimum है इस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए, but then there is an overall cutoff. But coming to the point which I was saying that कट ऑफ इंक्रीज हुए हैं. कट ऑफ इंक्रीज इसलिए हुआ था क्योंकि टाइम बढ़ गया था, राइट? नाउ वी शैल बी फॉलोइंग दिस 2019 थिंग ओनली बिकॉज़ 2022 में the same pattern of 2019 is going to be followed, right? The same pattern of 2019 is going to be followed. Now let's talk about this one, right? अब आप यहाँ पे देखिए, किसी ने एक सवाल पूछा है कि सर कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, एंड सर इफ वी क्लियर 2 सेक्शन एंड नॉट द थर्ड वन, सो वी विल बी सिलेक्टेड. जय, नो, ये कंपल्शन है कि दैट यू विल हैव टू क्लियर ईच सेक्शनल कट ऑफ. आपको हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना है. आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं. मान लीजिए यहाँ पे 160 में आपके मार्क्स आ गए 49, यहाँ पे आप 80 में सपोज करो मार्क्स देकर के आए 53, ठीक है जी. या फिर 80 में मान लो आपने 80 में बहुत अच्छे हैं आप मैथ्स में, शॉर्ट आंसर में आपने 80 में 60 मार्क्स लेकर के आ गए, ठीक है जी. बट यहाँ पे 160 में यू गॉट जस्ट 69 मार्क्स. व्हाट वाज द कट ऑफ? 71. यू गॉट 69. नो कॉल फॉर इंटरव्यू बिकॉज आप एक सेक्शन में रह गए, राइट? सो इट इज अ कंपल्शन फॉर यू टू क्लियर द कट ऑफ इन each and every section, and then you will have to clear overall cutoff as well, right? So आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको. एक क्वेश्चन है कि सर if we clear the examination, will the coaching you providing us with the interview guidance? Absolutely, absolutely, we shall be providing you with all the interview guidance and mentorship needed for you, right? Let me pitch in here, sir. Boys and girls, please understand that once you're over with your IIM, once you're over with your GMAT, then after that we would actually be getting into the interview. I would request all the students who believe जिनका पेपर अच्छा गया है, जिन्हें लगता है कि होगा, please come for the interview, because this is what going to be an extensive process. This is not a 1 day, 2 day or 1 week affair. इसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे, जहां पे आपकी ट्यूनिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कैसा इंटरव्यूज होगा, वो एक फॉलो होगा पूरा प्रोसेस. सो मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एज सुन एज योर पेपर इज ओवर, you believe that you have taken your cutoffs, you believe, because there's another session we're going to conduct, I think on Saturday 2nd July, right, where we're going to talk about IIM Indore ka cutoffs वगैरह, what could be the expected cutoff there, and we would also be talking about how is the paper. तो उससे आपको काफी कुछ पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर stand कर रहे हैं, and from there I would request you all to be the part of the interview process as well. Yes, sir. Thank you so much. And Nandini is asking Rohtak or Indore ki yes, we shall be conducting the interview, one-to-one interview sessions, and for Rohtak and Indore both, right? So please be assured. और जैसे सर ने बोला कि as and when you are done with, you have written the examination, और examination relatively अच्छा गया, आपको ऐसा लगता है कि you can make it, please start your interview process, interview preparation at that point in time only.
So there's a follow-up question here. Vibho says, मान लीजिए हमारा unsure हो तो क्या तब भी हम इंटरव्यू दें? Boys, please understand my point. मेरे कहने का मतलब है अगर आपको लगता है आपका हो रहा है तब तो पक्का करेंगे ही, राइट? तब आपके पास कोई हाँ ना का प्रोबेबिलिटी नहीं है. बट अगर आप अनश्योर हैं तब भी आप प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है. बट इफ यू आर एक्चुअली द वन जिसे लगता है कि कट ऑफ हो गया मेरा, सही है, हो जाएगा, देन इन दैट कंडीशन उधर तो करना ही करना है. सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि अगर मैं अनश्योर हूं तो मैं नहीं करूं. आपको भी करना है, सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है? सो कम इनटू द यस, श्योर. एंड अनश्योर का मतलब विभोर ये होता है कि दैट देयर इज अ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस और यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. नो, आपको अचानक से ये पता चल जाए कि आपको कॉल आ गया इंटरव्यू का, क्या करेंगे आप? Will that 4 or 5 days be sufficient for you to prepare for interview? So as soon as you write the examination, you can start the preparation, right? So coming to the next slide, yeah. अब यहाँ पे जो सबसे important चीज है, you can just see this that what makes IIM Indore tough, right? ये डेटा है 2011 से 2015 का, बट मैं सिर्फ एक साल का डेटा 2019 का ही शेयर कर रहा हूँ कि टोटल 19,822 applicants they applied for IIM Indore. राइट, इसमें 17,550 एप्लीकेंट्स दे अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. ऐसा हर एग्जामिनेशन में होता है कि 10-15% बच्चे अपीयर ही नहीं होते. मुझे लगता है कि शायद वो सो जाते होंगे या भूल जाते होंगे मेरा एग्जाम भी है, या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग अपीयर नहीं होते. फॉर्म तो फिल कर देते हैं, अपीयर नहीं होते. सो अप्रोक्सीमेटली 20,000 बच्चों में से 17,500 बच्चों ने एग्जाम लिखा था. सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट 17,550 बच्चों में से 13,000 स्टूडेंट्स को ही पॉजिटिव रॉ स्कोर आया था. पॉजिटिव रॉ स्कोर मींस मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो 4,500 बच्चे, 4,500 बच्चे ऐसे थे जिनका 0 या नेगेटिव रॉ स्कोर था, राइट? सो यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ I would say important is this examination, how significant is this examination, rather in other words how tough is the examination. कि 4,500 बच्चे ऐसे हैं जो कि बेसिकली 0 या 0 से कम मार्क्स लेकर के आ रहे हैं. एक से ज्यादा, 1 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 13,000 बच्चों के ही हैं, राइट? 865 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, एंड फाइनली वी हैव 150 सीट्स. सो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, राइट? सो 5:1 का रेशियो है. नाउ as you can see this 2020 का ये sheet है. 2020 में 8,105 students got the positive raw score, जिसमें 982 students को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, right? This was 2020, and if I show you 2021, तो 2021 में 10,000, क्योंकि number of applicants ज्यादा थे, 10,248 students को positive raw score आया था. Means एक से ज्यादा नंबर, 1 greater than equal to 1. इस 10,248 स्टूडेंट्स में से 847 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था, राइट? एंड यू कैन सी दिस जनरल कैटेगरी वाज 325, EWS 75, 238 and so on, right? So this is category wise data. Now coming to the important point is, first of all let me take the mathematics part. Mathematics part में आप देखिए कि first of all maths में there are 2 sections, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, एंड शॉर्ट आंसर जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे. नाउ लेट मी टेल यू दिस, आउट ऑफ दीज 2 सेक्शंस इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में ये जो 2 सेक्शन हैं, जनरली बच्चों को शॉर्ट आंसर ज्यादा इजी लगता है, राइट? शॉर्ट आंसर में जिसमें आपको आंसर्स टाइप करना होता है, दे फाइंड इट इजियर एज कंपेयर्ड टू द QA MCQ, राइट? सो शॉर्ट आंसर में कौन से टॉपिक्स प्रेवलेंट होते हैं या डोमिनेंट होते हैं? आप देखिए 2019, 20, 21 तीनों इयर्स का मैंने यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले हैं शॉर्ट आंसर में. सो नंबर सिस्टम, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, लॉगरिथम से 2 क्वेश्चंस, सीक्वेंसेस सीरीज 1, वेन डायग्राम 1 एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चंस. टोटल 20 क्वेश्चंस थे. 2020 एंड 2021 पे मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज दैट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, दैट वाज नॉट अ परमानेंट अरेंजमेंट. और आपको अच्छे से पता है कि भाई 10 क्वेश्चन ही आप दे रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आपके पास टॉपिक्स हैं कहाँ कवर करने को, आप कितने टॉपिक्स कवर करोगे? आप एक टॉपिक से एक ही सवाल पूछोगे ना, तो आप मैक्सिमम 10 टॉपिक कवर कर सकते हैं. यू डोंट हैव एनफ रूम और यू डोंट हैव एनफ स्कोप टू आस्क मेनी टॉपिक्स. सो आप देख सकते हो एक टॉपिक, एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से, राइट? सेम गोज विद 2021.
यही रीजन है कि we do not draw a corollary between 2019 and 21 because 2019 में you have more scope to ask, you have the more diversity in terms of asking questions, right? So this is 2019 and you can see that number system इसमें जो prevalent part है, matrices, determinant was there, algebra is there, arithmetic is there, coordinate geometry is there, and questions are actually good. Questions अच्छे होते हैं, right? And very conceptual questions. So this was about the short answer. Now MCQ जिसमें कि 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सेक्शन बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, wherein you know because इसमें अगर आप देखोगे तो जनरली 25% के आसपास कट ऑफ जाता है. Means out of 160 marks, if you get around 30-31 marks, you easily crack the sectional cutoff, right? Now you can see this. Generally, I ask students to focus on these topics most: permutation, combination, probability, functions, coordinate geometry, ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंसेस सीरीज एंड लॉगरिथम. आप ये 6 टॉपिक्स देखिए, इस 6 टॉपिक्स से 40 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन तो सिर्फ इन 6 टॉपिक्स से है. मींस अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दीस 6 टॉपिक्स. और इसमें अगर इन 6 टॉपिक्स में 3 और टॉपिक मिला दिया जाए, नंबर थियरी, नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक, 7 क्वेश्चंस इसके, 6 क्वेश्चन इसके, तो ये बन गए 31 आउट ऑफ 40. अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द पेपर आर फ्रॉम दीज 9 टॉपिक्स, राइट? सो आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज टॉपिक्स आर, राइट? एक सजेशन है आपके लिए कि आपके पास जो भी 3 दिन बचा हुआ है, प्लीज रिवाइज दीज टॉपिक्स एंड डू सम गुड क्वेश्चंस, राइट? आपको अच्छे से पता है कि आपने अभी तक प्रिपरेशन कर लिया होगा, आप रिवीजन मोड पे होंगे, आप 1-2 मॉक्स लिखें, बहुत अच्छी बात है. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड लॉट ऑफ मॉक्स एज वेल, राइट? जो हमारे प्रथम का मॉक्स है, काफी अटेम्प्ट किया होगा आपने. बट आई सिंसियरली सजेस्ट कि अगले 3 दिन में ये जो टॉपिक्स हैं इसको एक बार ब्रश अप कर लीजिएगा जरूर, बिकॉज यू नो क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दीज टॉपिक्स, दीज 9 to 10 टॉपिक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, राइट? एक चीज और बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर जीआईपी मैट में लॉजिकल रीजनिंग आता है, आईएम रोहतक में लॉजिकल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चंस, सर आईएम इंदौर में नहीं आता क्या? गाइस लेट मी टेल यू दिस, डीआई इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन बेसिकली आईएम इंदौर. हर साल, हर ईयर, एवरी ईयर you have 5 questions on data interpretation. DI पे 5 questions रहेंगे ही रहेंगे. लास्ट ईयर फुटबॉल का एक डेटा दिया गया था, स्पोर्ट्स पे एक क्वेश्चन आया था, and 5 questions were there on that particular DI topic, right? So please do not ignore the DI part. DI के साथ जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर शुरू के 5 मिनट में अगर आपने ये 5 क्वेश्चन क्रैक कर लिए DI के, तो आपके मार्क्स कितने बन गए? 20 मार्क्स. अगर सेक्शनल कट ऑफ 30 जा रहा है तो आपने शुरू के 5 मिनट में 20 मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर दिया आपने. आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए और 3 क्वेश्चंस बनाने हैं. सो प्लीज डू नॉट इग्नोर द डीआई पार्ट, बिकॉज डीआई विल बी पार्ट ऑफ एमसीक्यू इन मैथमेटिक्स, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ एज इफ आई शो यू दैट 2020 में और 2021 में क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस कम कर दिए गए थे, 40 से 20 कर दिया गया था घटा करके, सो दीज वर द टॉपिक्स कवर्ड. लेकिन आप जब आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, यू डोंट हैव मच टॉपिक, यू डोंट हैव एनफ टॉपिक टू यू नो एक्सप्लोर, राइट? सो किसी तरह से इसको लॉगरिथम के 2 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी पीएनसी के 3 क्वेश्चंस 2020 में थे. 2021 में अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, दोनों क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थे. लॉगरिथम का क्वेश्चन रहना ही रहना है. लॉगरिथम के क्वेश्चंस एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर में भी रहेंगे और एमसीक्यू में भी रहेगा. सो प्लीज रिवाइज द बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम, राइट? मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड लॉगरिथम तो आप ये मान के चलिए आना ही आना है विदाउट फेलियर, राइट? नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चंस थे, right? Functions, set relation and Venn diagram. This is important topic. Functions, set relation and Venn diagram. इसको please brush up कर लीजिएगा. You have 3 days of time left with you. Linear quadratic equation से एक सवाल था, matrices determinant से एक क्वेश्चन था, right? Let me tell you, 2019 में matrices से काफी क्वेश्चंस थे, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस थे, both MCQ and short answer मिला करके, right? Progression से 2 questions, set theory 1 question, right? DI से बेसिकली डेफिनेटली DI से 5 क्वेश्चन. सो जब क्वेश्चंस कम कर दिए गए थे, आप देखिए क्वेश्चंस जब 40 से कम करके 20 कर दिया गया था, उस 20 में भी DI से 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया. रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द QA टॉपिक, बट DI की वेटेज कम नहीं की गई. DI से 5 क्वेश्चन पूछा गया. जब 40 क्वेश्चन थे तभी पूछा गया, और जब 20 कर दिया गया क्वेश्चन MCQ में तब भी DI पूछा गया. सो DI मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, राइट? Now some observations and suggestions before I go to the English part. मैं प्रवीण सर को रिक्वेस्ट करूं, उससे पहले जल्दी से मैं कुछ suggestions and observations आपको आपके सामने शेयर करता हूं.
and this could be a part of your strategy as well. This year cutoff may be low as compared to last year, right? Kyun? Because less time per question is available, right? Less time per question is available. जहाँ पे आपको 2020 और 21 में MCQs QA-MCQ के लिए 1.5 मिनट पर क्वेश्चन अवेलेबल था, शॉर्ट आंसर के लिए 3 मिनट्स पर क्वेश्चन अवेलेबल था, वैसी बात अब नहीं रहेगी. यू विल बी गेटिंग 2 minutes per question for short answer and 1 minute per question for MCQs, right? Diversity in terms of questions expected, because since we are going to have 100 questions and 60 on mathematics, right? So more number of topics would be covered. So questions could be tougher as compared to the last 2 years, COVID years, right? Choice of question would be the key, right? आप कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं बनाने के लिए? Please understand one thing. अगर MCQ में 40 questions आते हैं, you are not supposed to solve all the 40 questions. Let me tell you this. अगर आज इस 40 questions में से 25 attempt करते हैं और जिसमें आपका 20 सही हो जाता है, आपका काम हो गया, बल्ले बल्ले. Please understand one thing. You are not supposed to answer every question. 40 questions का मतलब ये नहीं है कि आप 40 के 40 answers दें. No. You just have to select the right questions जो आपसे हो पाता है. एक चीज हमेशा याद रखिए, इस एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस में से कम 12 से ऐसे 15 क्वेश्चंस होंगे, 12 to 15 क्वेश्चंस जो ट्रैप क्वेश्चंस होंगे. दोस क्वेश्चंस विल कंज्यूम टाइम किलिंग क्वेश्चंस होंगे. अब इस एग्जामिनेशन में ये जानना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट मैं हमेशा ये बच्चों से कहता हूँ, इस एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि कौन से क्वेश्चन से बचना है, राइट? कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है, ये ज्यादा जरूरी है. ये 12 to 15 अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो आप क्वेश्चन को स्कैन करके ये समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन करना है आपको और कौन से क्वेश्चन से बचना है आपको. यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस 12 to 15 क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रैप क्वेश्चंस. इनको तभी अटेम्प्ट कीजिएगा जब लास्ट में आपके पास समय हो. आफ्टर सॉल्विंग ऑल द इजी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, तभी इन क्वेश्चंस को टच कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा. सिंपल सजेशन है कि ऐसे ट्रैप क्वेश्चंस को छूइएगा भी मत, बिकॉज इट विल अननेसेसरी किल योर टाइम, राइट? सो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस वुड बी द की. अच्छा, एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, जो इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है? तो एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा होता है ना, एक प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि कहीं ना कहीं उसके मन में एक ईगो रहता है, यार मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, एंड ही हंट्स फॉर गुड क्वेश्चन. उसके सामने एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आओ ना, वो क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता है और उसको प्लेजर तभी मिलता है जब वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर दे, राइट? प्लीज डोंट डू दिस इन IIM रोहतक एग्जामिनेशन. मान लीजिए आप किसी ट्रैप क्वेश्चन के चक्कर में फंस गए, आपने उस क्वेश्चन को पकड़ लिया, आपने दिल पे ले लिया कि मुझे ये क्वेश्चन बनाना है क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ. आपने ये सोच लिया, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 7 मिनट्स का टाइम दिया और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है जी? इस 7 मिनट्स इन्वेस्ट करने के बाद आपको मार्क्स कितने मिले? 4 मार्क्स. लेकिन अगर कोई दूसरा स्मार्ट बच्चा होगा, वो क्या करेगा? इसी 7 मिनट्स में वो 3 इजी क्वेश्चन सॉल्व करेगा. 3 इजी क्वेश्चन सॉल्व करेगा 7 मिनट में, और इसके मार्क्स कितने आ जाएंगे? 12 मार्क्स, राइट? अब आप मैथ्स में हो बहुत तेज, लेकिन आप ट्रैप क्वेश्चंस के चक्कर में फंस गए. You just got 4 marks by investing 7 minutes, and the other student, he got 12 marks by investing 7 minutes. अब मुझे बताइए किसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है? Obviously the second person, right? So please, do not fall for the trap questions. Choice of questions matter a lot, right? Choice of question will matter a lot, right? You have to select the right question, ठीक है? Remember, you have to maximize your marks within those 2 hours. आपको वहां पे अपने knowledge, अपना ज्ञान, अपना acumen नहीं दिखाना है. वहां पे you have just to be smart, right? आपको सिर्फ smartness show करनी है. You have to maximize your marks. You are not going there to solve tough questions. In fact, you are going there in that examination कि आप अगले 120 मिनट में, जो 120 मिनट आप बैठेंगे वहां पे 2 घंटे का एग्जाम देंगे, उस 120 मिनट में you have to maximize your marks. आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देकर के आना है, ये आपको मोटिव होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट would be the key. इसी 120 मिनट्स में कोई बच्चा जो है वो बेसिकली 100 में से सिर्फ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएगा, और इसी 120 मिनट में दूसरा बच्चा 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएगा, राइट? It depends upon the level of preparation and how smart you are and choice of question you make. That will decide that how good are you able in managing your time, right?
मेरा सजेशन यही रहेगा कि कवर ऑल द टॉपिक्स, एंड आई सिंसियरली होप एंड सिंसियरली बिलीव कि अभी तक आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे मैथ्स में, राइट, बट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपने अगर 50 टॉपिक्स अगर कवर किए हैं, जरूरी नहीं है कि 50 के 50 टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ है, यू आर स्ट्रांग इन ऑल द 50 टॉपिक्स, नो। इस 50 टॉपिक्स में अगर आपने कवर किए हैं तो ऐसे 20 टॉपिक्स होंगे, राइट, जो आपका स्ट्रेंथ होगा। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट, so that is also very very important because you are not expected to solve each and every question. And last but not least, the only suggestion to you is that be confident. अपने ऊपर विश्वास रखिए साहब, आप भी कुछ हैं, ठीक है, so be confident about yourself, ठीक है। And ultimately, you know, I'll suggest that please go with a plan. एक प्लान के साथ जाइए कि मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। आप बिना सोचे समझे क्वेश्चन से भिड़िएगा मत, राइट, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टाइम किलिंग क्वेश्चंस होंगे, राइट। प्लीज गो विथ अ प्लान, राइट, एंड इट इज ऑलवेज सेड दैट इन एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ठीक है। सो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कि एक स्मार्ट बच्चा चला जा सकता है IIM इंदौर में, और एक बहुत ही ज्यादा शार्प बच्चा हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल ना आए, बिकॉज ही डिड नॉट हैव द प्लान। Whereas somebody is very smart, average in studies, but very smart and has a plan, he might make it to the interview and he might get admission to IIM Indore as well, right? So this was my suggestion. Now I would request, Praveen sir to take the verbal ability part. Praveen sir. Thank you, sir. Okay, I think let me continue from where Bini sir has left, right? Now he has actually helped us out with the complete picture, how the things would be, what are we supposed to work with and everything. So let me continue from here. Another pointer is obviously where he said time management. So let me little bit build on that. जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम प्राइमरली कह रहे हैं स्कैनिंग ऑफ द पेपर। तो सबसे पहली चीज जो बात हो रही है वो स्कैनिंग की जरूर हो रही है। Without scanning, if you're thinking that you would be in a position to solve the paper, I doubt on that portion. I sincerely doubt on that portion. You need to scan the entire paper. पूरा पेपर को आपको स्कैन करना है सेक्शन वाइज, ऑब्वियसली एक एक सेक्शन करके आपके पास स्कैनिंग का रेफरेंसेस आएंगे, एक एक सेक्शन आएगा, आप टॉगल करके थोड़ा आगे पीछे देखिए दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू वुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर ऑफ नॉट सो इजी लेवल एंड सो फॉर्थ। दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू लुक इनटू, व्हिच इज व्हाट वी नो एज स्कैनिंग ऑफ द पेपर। दूसरी चीज, सर ने जो भी अभी तक डेटा दिया है, आई एम श्योर सर ने डायरेक्टली भी बात बताई और ये चीज आपको भी समझनी होगी। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर यहाँ पे ये है दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, इफ से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वर्बल की बात करते हैं, लेट मी टॉक अबाउट वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन में सर ने कहा कि 45% इसकी कट ऑफ है, राइट। इफ द कट ऑफ इज 45%, दैट डज नॉट मीन that I would be doing 50% of this reference only, or a 50% of the paper में ही 100% accuracy से करूंगा, या मैं 45% ही लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपको शायद एक चीज नहीं पता है जो कि अभी मेरी सर ने कैटेगोरिकली बताई है कि आपका ये रेफरेंस सिर्फ 65% है। That means what we are talking about is जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 65% होगा। That is what we'll have to understand. I'm sure ये बात आपको समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं हम। So that means जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे तब 65% का उसका कन्वर्जन होगा, because we know that 35% is all about interviews, right? So जो भी मार्क्स आपको इसके अंदर आएंगे, मान लीजिए आपके आते हैं 200, 300 और 350, whatever भी the marks है, उसको 65% कन्वर्ट में किया जाएगा, and then the 35% is all about the interview there. So इस तरह से आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस प्रोपोर्शन में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ कट ऑफ लाना है। Cutoff is not the only thing there. You are supposed to go beyond that as well. Number 3. Now, sir, क्या अब आप पहले ये बता सकते हैं कि कितने कट ऑफ मेरी होनी चाहिए, कितने मार्क्स मैं श्योरली टारगेट करूं और उसके बाद में उसके ऊपर एनहेंस करूं? तो अगर आप मेरे से पूछेंगे से 416 160 मार्क्स, राइट, दैट इज द टोटल मार्क्स दैट यू हैव, मैक्सिमम मार्क्स दैट यू हैव, तो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप 100 मार्क्स is what that you are getting with a plus and minus. अभी हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वो सेकंड पॉइंट। 100 मार्क्स प्लस इसमें आप 15 to 20 marks is what that you are adding here as a bonus
it would be a great idea. So that means 100 marks is a basic element. I repeat, 100 marks would be the basic element. So if I'm saying 100 marks, how many questions am I talking about? So if I'm saying 100 marks, how many questions am I talking about with 100% accuracy? थोड़ा सा गणित करने की कोशिश करते हैं, right? Where Vineet sir has beautifully explained this concept, और मैं सिर्फ उसी चीज में से derive कर रहा हूँ, correct? So 100 marks. If there are 100 marks, how many questions am I supposed to solve? I'm sure you would have got the picture. I'm supposed to look into 25 questions with 100% accuracy. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसका मतलब अब ये हुआ that out of these 25 questions, अगर मैं 25 out of that, if I solve some 29 questions with 85% accuracy, या अगर मेरी 90% accuracy भी होती है, मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने मॉक्स बहुत सारे किए हैं, मैं नर्वस में आ जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम भी होगी, सब कुछ मैं मान के चल रहा हूं, तो मैं 85% उसे 85% तक गिराता हूं, दैट मींस 15% मैंने रिड्यूस कर दिया, तो आई विल बी सॉल्विंग 29 क्वेश्चंस. सो अगर मैं 29 से 31 questions with 85% accuracy भी करता हूं, I am sure मेरे पास इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, right? I would definitely be getting good marks in there. I'm sure आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. So that means मुझे 100 मार्क्स तो चाहिए रेस में रहने के लिए, रेस में टॉप में जीतने के लिए, जिसको मैं हर बार कहता हूं कि 15% हमेशा टॉप होता है, जो कि तकरीबन 15% ही होता है. अगर ऐसी बात है तो इस टॉप लिस्ट में आने के लिए आपको इतने क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे. आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आ रही. बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to please make sure that you subscribe to this YouTube channel, and please like this video, because the next video which is about IIM Indore analysis, which is about SLAT, which is also about the GMAT, which is also about symbiosis, सबके एनालिसिस आपके पास आएंगे, स्ट्रैटेजीज आपके पास आने वाली हैं. सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव स्टिल नॉट लाइक दिस वीडियो, आई वुड रिकमेंड प्लीज डू दैट, राइट? ओके, लेट मी गो अहेड फ्रॉम हियर. नाउ द क्वेश्चन दैट विल कम डाउन हियर इज अ सिंपल थिंग. सर कितने क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करूं? हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स डाउन है क्या करना है. देखो, एक तो रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वन नहीं, देयर विल बी टू पैसेजेस हियर. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप दो पैसेजेस लगा के चलिए, वे यू वुड हैव 10 to 12 क्वेश्चंस, एंड देन ऑन एन एवरेज एवरी पोर्शन विल हैव 4 क्वेश्चंस. अच्छा, एक चीज विनीत सर ने और बहुत ब्यूटीफुली कही कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो वैरायटी बढ़ जाती है. बट ऑब्वियसली व्हेन आई एम सेइंग दिस वोकैबुलरी, दैट डज नॉट मीन that vocabulary would refer to as synonym antonyms. ये आपका वर्ड यूसेज हो सकता है, ये आपका वर्ड रेफरेंस हो सकता है, ये हो सकता है ऑड वन आउट, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, मगर ये वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होंगे. द वन दैट वी हैव बीन डूइंग, आज भी हमने किया है, और एक सेशन हम कल भी सुबह करेंगे आप लोगों के साथ, राइट? सुबह 8:30 आई थिंक आई डू हैव अ क्लास विद यू, तो हम डिस्कशन वहां पे भी करेंगे वो चीजें. तो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हियर, दैट वोकैबुलरी can take several dimensions. So you will have to have a good idea for this. Similarly, when I talked about reading comprehension, paramount रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 to 12 questions रहेंगे. हर reading comprehension में let me assume 12 questions. इसमें से कुछ 4 questions are extremely easy for me to solve, right? Then there are 4 questions which might require little time, and there would be 4 questions which would definitely be a trap. A trap, as Benitza said, a trap are the questions which are going to take more time of yours. तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. आगे चलते हैं. Then there would be para completion questions as well. Para completion is something like passage given है, उसका completion करना है. 4 questions कर किए हुए हमने. Idioms and phrases के अंदर there'll be 2 questions that might be comfortable with it, but 2 questions would be of a high level or a tier 2 variety questions. Correct जय? You know what are the 2 questions, right? So इसके अंदर कुछ 2 question होंगे जो टीयर 2 के इडियम्स होंगे, जिन्हें आप घर पे नहीं बना सकते. इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपसे रहेगा, नॉलेज प्राइमर के अंदर जितने एक बार इडियम्स है उनको स्कैन कर लीजिए, और अगर आपने मॉक्स में कर लिया है दैट्स आल्सो सफिशिएंट, राइट? लॉजिकल सीक्वेंसिंग और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. सर क्या ये लॉजिकल रीजनिंग वहां से अलग वाली होगी जो एलआर का पोर्शन मैथ्स के अंदर आता है? हाँ, इधर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्राइमरली स्ट्रेंथनिंग एन आर्गुमेंट, वीकनिंग एन आर्गुमेंट, व्हाट कैन बी डिफाइंड, कंक्लूजन स्टेटमेंट्स, assumption statement, what can
cannot be said. Such kind of questions are also been asked. That can be in the form of the paragraphs, small passages, right? Maybe a liner or two. This is what their specialty. ये उनकी एक specialty होती है. Similarly, they'll also be looking for the sentence correction. The sentence correction primarily would be on the form of grammar. तो grammar पूछेंगे तो यहाँ पे ये आता है. पैराजम्बल्स के अंदर आपके पास टीटा टाइप क्वेश्चंस होंगे. जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं. जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं. फॉर पैराजम्बल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, these are the questions you are supposed to type in. जिनको टीटा टाइप बोला जाता है, इनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. जैसे ऐसे शॉर्ट आंसर्स, मैथमेटिक्स, दोस 20 क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उस तरह से इनकी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. फॉर द रिमेनिंग यू वुड डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट. आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया कि सबसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. तो सबसे पहली चीज, आरसी इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते सर मैं आरसी को छोड़ के आगे जा सकता हूं. नहीं, आरसी में से 50% विद 80-90% एक्यूरेसी करना पड़ता है, तभी चीज आगे बनती है. वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सेकंड वुड रेफर टू एज अ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी प्लेज अ बिगर रोल, जिसके अंदर इडियम्स भी आते हैं, फ्रेजेस भी आते हैं एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी आते हैं वोकैबुलरी के अंदर. लास्ट वुड बी हियर अबाउट ग्रामर. They are not much bothered about grammar part. They are not much bothered about grammar part. They are much bothered about RCs and vocabulary. Understanding, reading, understanding of the word, understanding of the phrase, that is important here. So इन सब चीजों पे ज्यादा concentrate कीजिएगा, things would get definitely better off for you, right? I'm sure Tita would refer to as type in the answers. Tita would refer to as short answers where you're supposed to type in the answers. तो आपके पास on screen keyboard होगा, on screen keyboard पे आपको वो आंसर टाइप करना होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे पैराजम्बल्स हैं तो उसमें ABCD होगा, तो आपको ABCD करके दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, करेक्ट? ओके, सो आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई कि मिनिमम मार्क्स मुझे कितने चाहिए. आपको ये भी समझ में आ गया कि मेरे को मिनिमम क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होंगे. बट अगेन दिस मिनिमम डज नॉट मीन दैट दिस इज व्हाट दैट आई हैव टू गो विद. मिनिमम का मतलब होता है कि ये मिनिमम कट ऑफ के लिए है. इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ दिस ये 65% वाला, आई विल हैव टू इंप्रूव माई स्कोर. किसी में भी आप कर सकते हैं, राइट? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज ओके विद अस, राइट? सो विनीत सर, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कुछ क्वांट्स के ऊपर अगर आप बता सकें दैट हाउ मेनी मार्क्स दैट वी कैन फिल इन देयर एंड देन द टोटल फॉर दैट वुड मेक स्टूडेंट्स मोर कंफर्टेबल अबाउट दिस. Sure, sir. And okay, I want to share something, sir. Can I? Yes, sir, absolutely. Sure. So, of course, मैं क्वांट्स के लिए आपको आपके साथ शेयर करता हूँ. So, okay. First of all, let me discuss with some quantifiable data only. कि जैसे सर ने आपने कहा कि you have to maximize your marks. Just cutoff is not just enough, right? तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिसमें कि बच्चों को लग रहा है कि हमने सेक्शनल कट ऑफ कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो आपको जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाया, दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट? दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपके मार्क्स का 65% निकाला जाए, राइट? तो 31 इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इन QA. In 2019, 20 was bare minimum requirement in QA short answer and 71 in math in English, right? But आप एक चीज यहाँ पे देखिए और खुद से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए. यहाँ पे आप देखिए 10,248 students were getting a positive raw score, means इनका मार्क्स 1 या 1 से ज्यादा मार्क्स. इस 10,248 में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, कम से कम thousands of ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, thousands, 1,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों, 3,000, 4,000, 5,000 हो सकते हैं, जिनका टोटल मार्क्स इंग्लिश प्लस मैथ्स के दोनों सेक्शन में मिला के डबल डिजिट में होगा, राइट? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका टोटल मार्क्स तीनों ही सेक्शन में मिला के, इंग्लिश और मैथ्स के दोनों सेक्शन में मिला के सिंगल डिजिट में होगा, राइट? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका तीनों सेक्शन में मार्क्स मिला करके अर्ली हंड्रेड्स में होगा, राइट? कुछ ऐसे होंगे जिनका 150 प्लस होगा और कुछ 150 से लेकर के 160 के बीच में होगा, कुछ बच्चों का 120 से लेकर के 150 के बीच में होगा और कुछ लोगों का 180 से लेकर 200 के बीच में होगा, कुछ बच्चों का 200 से लेकर 230 के बीच में होगा. अब आप मुझे बताइए, इन सब का 65% निकाला जाएगा. क्यों? बिकॉज 65% इज वेटेज गिवन टू द रिटन टेस्ट. अब मुझे बताइए एक चीज कि अगर 200 से या फिर 180 से लेकर के और 230 के बीच में ऐसे अगर मान लीजिए 1,000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बताइए
इन बच्चों का 65% ऑफ 180 प्लस विल बी मोर और 65% ऑफ 120 will be more. Common sensically बताइए. Of course, 65% of 180 will be a more greater number as compared to 65% of 120. Right? तो although हो सकता है कि आपने तीनों सेक्शन के कट ऑफ क्लियर कर लिए हो और आपका टोटल मार्क्स मिल रहा है 122 बन रहा है, जो हमने काउंट किया था, जो आप पीछे इस स्लाइड में जाके देख सकते हैं. इफ यू सी इन दिस स्लाइड, आपके यहाँ पे 31 मार्क्स आ गए. 31 plus 20 is 51, 51 plus 71 is 122. आपके 122 मार्क्स आ गए. इसका मतलब ये नहीं है साहब कि बेसिकली आपने ओवरऑल कट ऑफ या फिर आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, नहीं. क्योंकि बेसिकली आपके 122 का अगर 60% 65% निकाला जाएगा, राइट, और कोई 1000 ऐसे बच्चे होंगे, कम से कम 1000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बेसिकली 180 प्लस मार्क्स आया है. कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका 200 प्लस मार्क्स आया है. अब मुझे बताइए 65% ऑफ 180 विल बी अ ग्रेटर नंबर, 65% ऑफ 200 विल बी अ ग्रेटर नंबर, या फिर 65% ऑफ 122 इज अ ग्रेटर नंबर? Of course, 65% of 200 is a greater number. 65% of 180 is a greater number. And by default, इस बच्चे को अधिकार है इंटरव्यू देने का. So please do not get stuck on the individual cutoff. Please understand, individual cutoff तो mandatory है ही निकालना आपको, right? At the same time, आपको अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमम आप कितना जा सकते हैं that depends upon you. फिर भी क्योंकि आपने पूछा है कि व्हाट शुड बी अ सेफ मार्क्स, व्हाट शुड बी आइडियल मार्क्स, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे प्रवीण सर ने कहा कि 100 प्लस शुड बी देयर इन बीए, और मैं ये पर्सनली मानता हूं, एंड आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू प्रवीण सर आल्सो, दैट सर आउट ऑफ 400 मार्क्स इफ somebody clears the individual cutoff plus at the same time his overall marks is 180 plus, is that a safe score, sir? Sir, out of 400, 180 is one of the safest score, I would call it, sir. It is one of the safest scores that one would get. Yes. Because as we were calculating, how many calculations here, I'm sure you are going to open the Pandora's box for them. The overall percentage, I mean, if I talk about the total marks, and when we talk about the student as getting the marks there, that is not more than 56 or 60%, right? Mm-hmm. So 60% is also on the higher side. So 180 is a very good score to get into. And that's the reason, sir, I always believe that अगर किसी बच्चे ने 45 to 50% marks score कर लिया ना out of 400, this particular student is on the safer side, right? So that really means 180 से 200 के range में अगर आप हैं, you are pretty safe, right? Now in order to be in this particular range, अगर 100 plus आप BA में score कर रहे हैं, तो short answer and QA MCQ. So this is QA short answer and this is QA MCQ, right? So in this particular section, your short answer थोड़ा आसान होता है और 80 marks का होता है. I would definitely expect you to have 35 marks, 35 to 40 in this particular range. यानी कि 35 to 40 का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको बेसिकली आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस करेक्ट बनाने. मैंने बच्चों के ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जिन्होंने कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस करेक्ट बनाया है. 13 क्वेश्चंस. सो एटलीस्ट मैं कंजर्वेटिव बनकर के इसको 40 मार्क्स रखना हूँ. एंड क्योंकि क्यूए एमसीक्यू में क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 160 इज द वेटेज, 160 इज द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस. सो इसमें 160 में मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि यू गेट अराउंड 60 to 65 marks, right? So that brings 100 plus 140 plus 40, which is 140, and plus 60 marks, that brings you to 200. अगर प्लस माइनस 10 कर दूं, अगर प्लस 10 पे आप होते हो तब तो खैर वाह, मतलब मैं तो आपको सैल्यूट करूंगा. अगर आप माइनस 10 पे भी जाते हो तो 190 पे आप पहुंचोगे आउट ऑफ 400 and you are on the safer side, right? So as per me, short answer में 40 marks and QA MCQ में 60 to 65 minimum. If you score this marks, you are on the safer side, provided that you have done well in the English part. English में अगर कहीं पे आप रह गए, इसमें अगर आपने 10 नंबर कम कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये 10-20 नंबर कंपनसेट करना पड़ेगा MCQ में और शॉर्ट आंसर में, provided that you have cleared the cutoff for English as well, sectional cutoff for English as well, right? So this is what I suggest you to score, and this is from my side. Sir, let me add for just 1 minute and 60 seconds. Let me add another pointer here. Boys and girls, as Vinisa said, 200 is something on the safer side, plus minus 10%, 10 marks here, not 10%, I'll call it 10 marks here, 10 marks there. That's also okay.
considering this, I'm sure Benisa would also agree with me, because CUET has come into the picture. There are more students who were not ready for the aptitude test are also ready. Hence, there would be a good chunk of students who were earlier not trying to get into IIMs, but may now try to get into IIMs as well. Hence, there is a small probability that this 200 may increase to 220 or to 225. So I'm not saying it will, but this is what a rough estimate that I would go with. Vinit sir, your take on that? Sure, sir. Sure, sir. Answer, in the last 3-4 years, IIM Indore has become very popular, sir. Very popular. Because मुझे याद है सर कि आज से 6-7 साल पहले 2016-17 की बात करूं तो IPM इंदौर के लिए इतने एस्पिरेंट्स नहीं थे, एप्लीकेंट्स भी नहीं थे. But now in the last 3-4 years, it has gained a lot of popularity and the number of applicants has also increased. Right? So definitely, number of applicants ज़्यादा हैं. People are preparing and people are there who are preparing for the last 1 year as well. Let me tell you this. Right? अगर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर बोर्ड एग्जाम के बाद लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है साहब. बहुत सारे लोग 1-1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं. So cutoff may increase, but having said that, 180 plus 200 के रेंज में अगर आप हैं, तो that is actually a safe score. You will be getting the interview call. Don't worry for that. Absolutely, sir. Absolutely, sir. That's definitely making sense. And for all those students who are worried about, sir, mera ye week, wo week, dekho boys and girls, let me be on the back foot now. Please go and solve it. You are already prepared. आप लोगों के पास एक स्ट्रैटेजी है. मनीषा ने कहा कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. हैव यू अ स्ट्रैटेजी विद इट एंड गो एंड अपीयर फॉर इट. पेपर देके आना, उसके बाद हम बात करेंगे अब क्या किया जा सकता है. आप पहले सोच रहे हैं कि सर इंटरव्यू मेरा अच्छा होगा नहीं, इसमें से इतने मार्क्स मेरे आएंगे नहीं, ये हो सकता नहीं, वो हो सकता नहीं. अगर आप पहली हार गए, वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आप तो पहली हार के बैठे हुए हैं. ऐसे में तो ऐसे गेम नहीं खेले जाते हैं. हमेशा गेम पॉजिटिविटी के साथ खेले जाते हैं. हैव अ पॉजिटिव रेफरेंस. जितना है उसके साथ जाइए. डू नॉट वेट फॉर अनदर एलिमेंट्स टू कम इन. जितना है उसके साथ जाइए. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से. एंड ऑल द बेस्ट टू यू. विनीत सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. आपने जो कहा कि मतलब मन के हारे हारे मन के जीते थे, बिल्कुल सही. अगले 3 दिन का समय बचा हुआ है. जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार प्लीज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, खुद पे विश्वास रखो. राइट? अगर आपने प्रिपेयर किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, मॉक्स दिए हैं, तो खुद पे विश्वास रखो. और पहले 65% जिसका वेटेज है उस पर फोकस कीजिए. 35% वाले पे बाद में कीजिएगा. पहले एग्जाम तो दीजिए हुजूर. एग्जाम तो दें जनाब आप अच्छे से. उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरव्यू कैसे निकाला जा सकता है. और आपने एक बार रिटर्न निकाल लिया, आई एम श्योर आप में एक हुनर है, आप में एक काबिलियत है कि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे. कोशिश कीजिए तो सही. एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी पोएम है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. तो कोशिश तो कीजिए आप. राइट? सो प्लीज गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. राइट? So thank you so much, Praveen sir, for joining in. Right? And I do hope this strategy session for everybody is of some value, right? And you got answers to all your questions in this particular session. So thanks, Praveen sir. Thank you for being such a great, mentor and such a great, I would say torchbearer in this. Sir, it's always a pleasure to be with you, where we get so much of wisdom out of that and the calculative way to attempt any of the questions. Thank you, sir. Thank you for that. And boys and girls, we'll be catching again at 9 o'clock for the GMAT. Please make sure for all the students who are the part of the GMAT should come down at 9 o'clock. वहाँ पे भी हम थोड़ा सा discussion करेंगे. बिल्कुल सर. So all the best. God bless everybody. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए. Stay safe, stay happy, and keep preparing for the next 3 days. Stay calm, composed, be confident about your preparation, and keep practicing. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Bye-bye.